Okay, students. Yes, in our last video, we have discussed about the features of PPC. Okay, we have completed two features, that is slopes downward from left to right. PPC always slopes downward from left to right. And second one was PPC is concave to the origin. What was the reason of this concavity? That because of increasing MRT or MOC. Okay. So I have told you in the last video at the end that we will study also that is it necessary that the shape of PPC will only be concave? What is the condition in which the shape of PPC will be convex or will be straight line? When does the PPC will be a straight line or convex? So students, in practical it is very difficult to find such a situation where the concavity, where we find that the PPC is convex or a straight line. But still we need to understand that when does PPC, I am again reminding you the reason for concavity of the PPF was increasing MOT. What does it mean? That to increase the production of one good, or we can say to increase the production by 1 unit of a good, we need to sacrifice the other good more and more. Okay, so that was the reason of concavity of PPC. So if we talk about the convexity of PPC, then what should be the reason? The reason will be just opposite of this. Because of MOC, because of decreasing MOC, the PPC will be convex to the origin. What does MOC decreasing means? That if we want to increase the production of a good by 1 unit, we need to sacrifice less and less units of another commodity. Again, I am repeating that if you want to increase the production of one good, for example, here I am written, for example, if you are producing 0 unit of wheat and one, or we can say if you are producing 10 units of wheat and 20 units of rice. Okay, if you want to increase the production of wheat from 10 to 15, so what you have to do, you have to decrease the unit of rice by say 60. Okay, then if you want to increase the production of wheat again from 15 to 20, you need to decrease, you need to sacrifice the production of rice by how many units? Let's say 14. So what you are able to see in this table, that to increase the production of wheat, you are sacrificing the good, you are sacrificing rice, but with which rate? Here you are sacrificing by 4 units, here you are sacrificing by 2 units. It means जो rate है sacrifice करने का वो क्या हो रहा है? Fall हो रहा है. But in the assumptions we have already seen that all resources are not equally efficient. So is it possible कि जिस production, जिस good का production आप पहले कर रहे थे, obvious सी बात है वो resource उस good के लिए बहुत अच्छा होगा. अगर आप दूसरे good की production को कम करना चाह रहे हो या फिर उसी रिसोर्स को दूसरी प्रोडक्शन में लगाना चाह रहे हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा गुड्स ही सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे. बट टीपीसी कॉन्वेक्सिटी क्या कहती है कि वी नीड टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस यूनिट्स. So if the rate, if MRT is falling, if the sacrificing ratio is falling, in that case PPC will be convex to the origin. I hope it is clear to you. Now the third condition is, when does PPC or when will a PPC will be a straight line curve? PPC straight line कब होगा? So obvious सी बात है, one thing that you need to understand properly, that the shape of PPC can be convex, concave and straight line. And the shape of PPC depends upon what? The shape of PPC always depends upon the slope. Okay, and slope किससे हम calculate करते हैं? With the help of MRT or MOC. If MOC is increasing, concavity. If MOC is falling, convexity. And if MOC is constant, it means if you are producing 10 units of wheat and 20 units of rice, if you want to increase the production of wheat from 10 to 15, you are sacrificing the production of rice by same unit, that is 15. Okay, again if you want to increase the production of wheat from 15 to 20, you are sacrificing 5 units. It means you can see the ratio. What is the difference between 20 and 15? That is 5.
Okay, what is the difference between 15 and 10? That is also 5. It means MOC, or we can say MRT is constant. At all levels, MRT is constant, 5. So if MOC is constant, in that case, PPF will be a straight line curve. So again, I am repeating that the shape of the PPC depends upon the slope, and slope is calculated by MOC or MRT. If MRT is increasing, concave. If MRT is falling, convex. And if MRT, or we can say if MOC is constant, PPF will be straight line. So students, with this, I am continuing with the next topic, that is shifts in production possibility curve. Or we can say the main heading of this topic is change in PPC. Change in PPC, what does it mean? Is it possible that the shape of PPC will be the fix in an economy? जरूरी है क्या ऐसा कि एक ही शेप पे इकोनॉमी ऑपरेट करती रहेगी? ये PPC मैंने इतना बनाया है, इसका साइज अगर इतना है तो जरूरी है क्या इतना ही रहेगा? PPC थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, थोड़ा फॉरवर्ड भी जा सकता है. So we will study that what are these conditions in which the shape, in which the PPC will be changed. Okay, so it depends upon, or first of all we need to understand that there can be two changes. PPC can shift and PPC can, here you can see, PPC can rotate. Okay, PPC shift भी हो सकता है और rotate भी हो सकता है. Now we will understand what are the reasons of shift and rotation. The production possibility curve will shift under two conditions, or here I am explaining you both at the same time. PPC shift or rotate दो condition में हो सकता है. If there is any change in resources or if there is any change in technology. Is it clear students? अगर आपके इकोनॉमी के या फिर आपकी इंडस्ट्री के किसी भी रिसोर्स में या फिर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है, तो in that condition your PPC will rotate or shift. Now let us understand what does it mean. So students, here I am taking the example. Please listen to it carefully. In the last video, we have taken the example that an industry is having 10 machines. Okay, an industry is having 10 machines and the production possibility and production capacity of one machine is 10 unit. Okay, we can say the production capacity of one machine is 10 unit per machine. One machine can produce 10 units. So if I take the example that if one machine is sold out by the industry or by that company, so how much machines are left? If one machine is sold, अगर एक machine कम सेल कर देती है कंपनी, तो कंपनी के पास कितनी मशीन बचेंगी? 9 left. Okay, here I am writing in short, 9 left. Okay, so what will be the production capacity of that company? Now 9 machines into one machine can produce 10 units, so 9 into 10, then the production capacity will be 90 units. और पहले कितनी थी production capacity कंपनी की? 100 units, क्योंकि machines कितनी थी? 10. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? अगर machines क्या है यहाँ? I am taking this machine as a resource. Okay, I have already told you in the last video, machine हमारा resource है. तो अगर resource कम हो जाता है, for example 10 machines से 9 machines रह जाती हैं, तो what is the effect on the production possibility? Production capacity also reduces. पहले production capacity कितनी थी? 100 units. Now the production capacity is 90 units. In second case, if I am taking the case, rather than selling, a company has purchased one more machine. Okay, एक कंपनी ने दोबारा से एक मशीन और परचेज कर ली है, तो उस कंडीशन में कंपनी के पास क्या हुआ? रिसोर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. 10 तो पहले से थी प्लस 1. इज इट क्लियर? नाउ द टोटल रिसोर्सेज विद द कंपनी इज 11. अब कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी? 11 into 10, इट मींस हाउ मच? 110 units. So in both the cases you can identify easily that if the resources are decreased, the production capacity also decreased. But if the resources are increased, it means from 10 to 11, the production capacity of the company increases. Earlier it was 100, now it was 110. Okay, so students, you have to understand here that it is necessary
Is it necessary that the production capacity of both the goods increases or decreases? क्या ये जरूरी है कि कंपनी ने जो मशीन परचेज की है या जो कंपनी सोल्ड की है वो दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन के लिए की हो, दोनों गुड्स के लिए की हो? पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन 10 मशीन्स में से 5 मशीन्स तो हम यूज कर रहे थे क्लोथ्स की प्रोडक्शन के लिए और 5 मशीन्स हम यूज कर रहे थे किसके लिए? फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एनी फूड आइटम्स के लिए, ठीक है? तो आपने सिर्फ अगर कंपनी ने इन 5 में से 4 जो मशीन सेल की है वो क्लोथ वाली की है, ठीक है, तो क्लोथ की प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर उसने वो मशीन सोल्ड की है जिससे दोनों की प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, तो आपको यहाँ ये चीज समझनी है स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी गुड रिसोर्सेज में कोई भी चेंज आ रहा है, चेंज क्या हो सकता है? रिसोर्सेज कम भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज्ड एंड रिसोर्सेज कैन बी डिक्रीज्ड, ओके। सो अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, अब यहाँ पे आपको इस डायग्राम में समझना है। फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑपरेटिंग एट दिस पीपीसी, हियर इट इज गिवन, प्लीज सी प्रॉपरली। ये जो डार्क कलर में आपका पीपीसी है, द नेम इज AB, ओके, AB. So this production possibility curve shows you that earlier economy was operating on this PPC. If resources of both the good rises, अगर आप एक रिसोर्स ले आओ जिससे दोनों की प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, तो आप देखिए पहले प्रोडक्शन इस पॉइंट पर हो रही थी, अब प्रोडक्शन अगर रिसोर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होकर कहाँ जाती है? ऊपर की साइड जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आई और रिसोर्स जो आपका सेकेंड गुड का था वो भी चेंज कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया, तो इस गुड की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा और आगे चली जाएगी। और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मैच करोगे, ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है इस तरीके से आप मैच करोगे, तो आपको एक नया पीपीसी मिलेगा। जो ओल्ड पीपीसी था वो कौन सा था? ये वाला था। न्यू पीपीसी इज दिस, ओके। सो इन दिस केस यू कैन सी दैट पीपीसी इज शिफ्टिंग। What is the meaning of shifting, students? When a thing completely moves from one place to another, that is known as shift. अब ये देखिए पूरा पीपीसी यहाँ से चेंज होकर आगे चला गया है, so this shift is known as rightward shift along PPC. Is it clear to you, students? Please raise your hands if it is clear. Okay, I will also give you the time if there is any query. At this time you please listen carefully to me. In the same way, if resources are decreased, okay, अगर आपने मशीन सेल कर दी है, अपनी एक मशीन सेल कर दी है जिसकी वजह से दोनों गुड्स की प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? योर प्रोडक्शन विल डिक्रीज। और डिक्रीज प्रोडक्शन हमेशा किस साइड होगी? लेफ्ट की साइड होगी। पहले आप बी पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे थे, नाउ योर प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज, इट मींस योर पॉइंट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम B to B2, and the production of this good also will decrease from A to A2, okay. So when you join these 2 points you will get this new PPC. So in this case this is known as leftward shift along PPC. So what we can say in the theory I have written, that if there is rightward, there can be rightward shift and there can be leftward shift. When does rightward shift will be there? It shows that increase in resources, okay, and leftward shift on PPC shows the decrease in resources. Is it clear, students? Now the next topic, next reason of shift in PPC is change in technology. अब आप कहेंगे मैम चेंज इन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है? अब देखिए स्टूडेंट्स, चेंज का मतलब रिसोर्सेज में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए हम वर्ड इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड नहीं यूज करते हैं। व्हाट वी यूज द वर्ड इम्प्रूवमेंट और डिग्रेडेशन, ओके, वी यूज द वर्ड इम्प्रूवमेंट और डिग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी इंप्रूव भी हो सकती है और डिग्रेड, इंप्रूव मतलब थोड़ा उसमें पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आ सकता है और डिग्रेडेशन मीन्स क्या आ सकता है उसमें? नेगेटिव, और वी कैन से वो डिक्रीज हो सकती है। नाउ से फॉर एग्जांपल एक कंपनी पहले क्या यूज कर रही थी? इंक प्रिंटर यूज कर रही थी, और वी कैन से देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, वी आर टेकिंग इंकजेट प्रिंटर, ओके, इंकजेट प्रिंटर जो आपको एक दिन में 100 पेजेस की का आउटपुट दे रहा था। इज इट क्लियर? इंकजेट प्रिंटर एक टेक्नोलॉजी मान के चलिए, यहाँ 100 पेजेस का आउटपुट दे रहा था। कंपनी ने क्या किया? इस प्रिंटर को फोल्ड करके वो एक लेजर प्रिंटर ले आई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रिंटर पहले भी एक ही था और प्रिंटर अब भी एक ही है, ठीक है। 1 इंकजेट प्रिंटर था,
Here I am writing 1 और अब जो प्रिंटर लेके आए हैं वो भी एक ही है, तो रिसोर्सेज तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुए हैं. व्हाट हैज चेंज? टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव. पहले जो प्रिंटर था वो सिर्फ 100 पेजेस दे रहा था, लेकिन अब जो लेटेस्ट प्रिंटर है वो अच्छी टेक्नोलॉजी का है, तो लेजर प्रिंटर आपको 200 पेजेस दे रहा है. तो इसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग, अब आप कहेंगे मैम यहाँ पेजेस मतलब आउटपुट. ओके, तो आउटपुट तो एक ही है, लेकिन मैं यहाँ इसको भी डिवाइड कर रही हूँ. 50 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट पेजेस थे हमारे पास. ओके, ब्लैक एंड व्हाइट, ये प्रिंटर हमें 50 ब्लैक एंड व्हाइट दे रहा था पेज, और 50 कलर्ड कलर्ड पेजेस दे रहा था. ओके, इन राइटिंग इन शॉर्ट. सो अब जो लेजर प्रिंटर आया है वो हमें क्या कर रहा है? 100 ब्लैक एंड व्हाइट दे रहा है और 100 ही कलर्ड दे रहा है. तो इससे क्या हुआ? जब टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स की इंप्रूव हो जाती है, तो उससे भी हमारा पीपीसी क्या करता है स्टूडेंट्स? शिफ्ट कर सकता है. दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड फॉरवर्ड शिफ्ट. ओके, सो ये कर्व आपका सेम रहेगा कि अगर चाहे रिसोर्सेज इंक्रीज हो या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, किसकी? दोनों गुड्स की, तो इन दैट केस पीपीसी शिफ्ट्स राइटवर्ड इफ द रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड्स आर डिक्रीजिंग, or if technology is degrading, then PPC will shift forward. I hope it is clear. Now we are coming to the rotation of PPC students. Concept बिल्कुल सेम है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है. When there is change in resources or technology of one good only, यहाँ दोनों गुड. अब आप एक बात सोचिए कि जरूरी तो नहीं है कि जो आप प्रिंटर लेके आए हो वो दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन को चेंज करे. हो सकता है वो प्रिंटर कलर्ड प्रिंट तो उतने ही दे रहा है, पर ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी ज्यादा दे रहा है. तो ऐसे केस में रोटेशन पॉसिबल है. रोटेशन किस किस एक्सिस पे हो सकता है? ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डज रोटेशन मीन्स? आप सभी ने मैथ्स में कंपास यूज किया होगा. ऑब्वियसली ज्योमेट्री बॉक्स में आपके कंपास होता है, तो कंपास पे आपके पास वी कैन से टू निप्स हैं उस कंपास में. ओके, 2 रॉड्स हैं उसकी. तो आप क्या करते हो? एक उसकी जो निप है आप उसे एक पेज पे प्लेस करते हो, और दूसरी साइड जो आपकी पेंसिल है या पेन है उसको आप रोटेट करते हो. ओके, मूव करते हो. एक पॉइंट आपका एक जगह रहता है और दूसरा पॉइंट मूव करता रहता है इन द सर्कुलर फॉर्म और इन एनी कर्व शेप. सो उसे ही हम कहते हैं रोटेशन. जब पूरा एक पर्टिकुलर थिंग पूरी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दैट इज शिफ्ट. बट अगर एक पॉइंट किसी कर्व का एक ही जगह पर है और दूसरा पॉइंट मूव कर रहा है, तो दैट इज नोन एज रोटेशन. सो स्टूडेंट्स, रोटेशन आपको समझ में आ रहा होगा. रोटेशन कब पॉसिबल है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द रिसोर्सेज ऑफ और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर वन गुड ओनली. अब मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखा रही हूँ. इफ देयर इज अ चेंज इन द रिसोर्स और टेक्नोलॉजी ऑफ दैट गुड विच इज ऑन which axis? X axis. अब यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए एक बार. In this diagram, on x-axis I am having butter and on y-axis I am having guns. Okay, these are the two goods. So if there is any change in resource, change means I have told you increase or decrease. Okay, या तो increase हो रहे हैं goods या फिर क्या हो रहे हैं? decrease हो रहे हैं. For example, आपके पास जो machine थी वो 10 units दे रही थी butter. Okay, और नेक्स्ट वन 20 यूनिट्स आपके पास आ रही थी गन्स की. इज इट क्लियर टू यू? नाउ 10 यूनिट्स ऑफ बटर एंड 20 यूनिट्स ऑफ गन्स. बट जो मशीन आपकी मशीन में कुछ ऐसा फॉर एग्जांपल कुछ डैमेज हो गया, या फिर आप एक फॉर एग्जांपल एक और मशीन लेके आए, तो जो आप मशीन लेके आए हो उससे बटर की प्रोडक्शन नहीं होगी. किसकी होगी? सिर्फ गन्स की होगी. तो फॉर एग्जाम्पल वो 20 की जगह 30 गन्स बना पाएगी. ओके, एम आई क्लियर? तो बटर की प्रोडक्शन तो सेम रही ना. ठीक है, बटर की प्रोडक्शन सेम रही, लेकिन गन्स की प्रोडक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई. तो अब आप इस वाले कर्व में देखिए, सेकंड कर्व में बटर की प्रोडक्शन जितनी पहले थी उसी पॉइंट पर रहेगी, लेकिन गन्स की प्रोडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी. मतलब जो पॉइंट पहले ए था अब वो क्या हो जाएगा? सी, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा. तो आपका जो कर्व है वो क्या बनेगा? बी से स्टार्ट करेंगे और सी तक मैच कर देंगे. तो आप इसे देख रहे हो, वन पॉइंट इज ऑन द सेम पॉइंट एज इट वाज अर्लियर, बट दिस पॉइंट हैज चेंज्ड. सो दिस इज नोन एज रोटेशन ऑन वाई एक्सिस. बट इफ इट इज अपोजिट, अगर आपका जो रिसोर्स आया है वो बटर की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, इट मींस उस गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है जो एक्स एक्सिस पर है. 10 की जगह 20 बटर की आप यूनिट्स बना पा रहे हैं, गन्स की एज इट इज है.
तो उसकी वजह से क्या होगा, इट इज नोन एज रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस. So students, you have to understand that if there is any change in the resources or technology of one good only, so there is rotation. But if there is change in resources of both the goods, there will be shift. क्योंकि दोनों की प्रोडक्शन चेंज हो रही है तो दोनों की जगह से पॉइंट चेंज होगा. लेकिन अगर एक की प्रोडक्शन चेंज हो रही है, सॉरी एक का रिसोर्स या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, so there will be rotation along PPC. If resources and technology is improving, okay, so there will be rightward rotation, and if both are decreasing or degrading, then there will be leftward rotation. I hope it is clear. Now we are coming to the next topic, that is whether economy will always operate on PPC. अब देखिए, आपके पास एक कर्व था. Again I am showing you. For example, we are having this curve. Okay? अभी हमने क्या बोला कि जो आपका कर्व है वो पीपीसी कर्व आपको क्या शो कर रहा है. पीपीसी कर्व ऑलवेज शोज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट एन इकोनॉमी इज हैविंग टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड विद द गिवन रिसोर्सेज. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इकोनॉमी की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है कोई इकोनॉमी उसी के ऊपर ऑपरेट करेगी, कहीं बाहर की तरफ या फिर अंदर एरिया में भी ऑपरेट कर सकती है? इज इट पॉसिबल? So here we will study in this point. Okay, so the answer is it depends on utilization of resources. Utilization means use of resources. An economy can be on PPF, inside PPF, or but it cannot operate outside PPF. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या समझना है. See in this curve properly, please see this curve. दैट अब इस जो ये लाइन है ये क्या है, पीपीसी कर्व है हमारा, ब्लू लाइन. ओके, आई होप दैट यू आर एबल टू सी दिस. अब इसे आप क्या मानिए, इसे आप फॉर एग्जांपल एक लक्ष्मण रेखा मान लीजिए, या फिर आप ये मान लीजिए कि आपने एक प्लॉट परचेज किया है. बहुत ध्यान से समझेंगे, आपने एक प्लॉट परचेज किया है या फिर एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया है अपने घर बनाने के लिए. आप कहेंगे मैम इस शेप में तो कोई प्लॉट परचेज नहीं करेगा, ये ट्रायंगल शेप. बट स्टूडेंट, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई एम टेकिंग एन इमेजिनरी एग्जांपल. ओके, तो अगर आपने ये वाला प्लॉट परचेज किया है, ये दो रोड जा रही है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये रोड है, और ये आपका प्लॉट है. इतना प्लॉट है आपका, ये अंदर का एरिया जो लाइट पिंक कलर का ये एरिया, ये आपका प्लॉट है. इसके बराबर में ये जो शेप है ये दूसरा प्लॉट है, ये किसी और का है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको अगर घर बनाना है, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस, so what is the area up to which you can use to construct your house? कितने एरिया में आप बना सकते हो? इतने में ही बना सकते हो, ऑब्वियस सी बात है जब आपका प्लॉट इतना है. या फिर लास्ट ये वाली रोड तक बना सकते हो और पॉइंट यहाँ तक बना सकते हो. सो स्टूडेंट्स, अब यही बाउंड्री, ये क्या है, बाउंड्री है घर की. क्या आप इस बाउंड्री के बाहर बना सकते हो घर अपना? जब आपका ये प्लॉट है ही नहीं, देन यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द हाउस. ओके, बिसाइड दिस पॉइंट. सो in the same way students, this boundary shows that an economy can produce the goods on this boundary and inside this boundary. okay, PPC को हम PP boundary भी बोलते हैं, जो बाउंड्री पूरे एरिया को, पूरी इकोनॉमी के एरिया को अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस में डिवाइड कर दिए स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे आपके सामने एक नया पॉइंट आ रहा है, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस. व्हाट डज दिस मीन? अब यहाँ पे देखिए मीनिंग आई हैव रिटन, अटेनेबल रेफर्स also means achievable. It refers to those combinations at which economy can operate. जिस पॉइंट तक या फिर जिस पॉइंट पर इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है, जितना प्रोडक्शन इकोनॉमी कर सकती है, उन सारे कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? अटेनेबल मींस अचीवेबल. अनअटेनेबल मींस इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशंस वेयर इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट, जो किसी भी इकोनॉमी की लिमिट के बाहर है विद द गिवन रिसोर्सेस, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल. जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ बताया, इस कर्व में देखिए, यू कैन सी पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ. ये सारे पॉइंट्स कहां पर है? इट इज नोन एज ऑन द पीपीसी. ओके, नाउ यू आर एबल टू सी attainable written inside this. okay, this point is known as attainable. and where is the G point? G point is outside the PPC. तो आपको तीन एरिया समझने हैं, on the PPC, inside the PPC, outside the PPC.
सो स्टूडेंट जब आपका प्लॉट इतना है तो आप इसके अंदर अंदर घर बना सकते हो, तो बना सकते हो, यू कैन अचीव. सो दिस इज नोन एज अटेनेबल पॉइंट. हियर आई हैव रिटन वी कैन प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ और ऑन द फ्रंटियर. ऑन द पीपीसी मीन्स आप, ये भी आपके घर की ही बाउंड्री है, आप इस पे गार्डन बनाइए या इस पे बाउंड्री रखिए, जो भी रखेंगे आप, लेकिन आपका है ये, तो ये भी क्या होगा, attainable. Okay, so you can say that we can produce inside the PPC and on the PPC. लेकिन जब ये वाला जो एरिया है G पॉइंट, आपका मन कर रहा है मैं इसने में भी बना लूं, so can you produce it? No, because आपका जो रिसोर्स है वो कितना है, सिर्फ इस ब्लू लाइन तक है. So this G point is known as unattainable combination. So we cannot produce at any point outside the PPF. We can only produce on the PPC and inside the PPC. I hope it is clear. So in this way the PPF separates attainable from unattainable. PPF क्या करता है, attainable और unattainable point को separate कर देता है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, PPF boundary. So students, in this way we have completed this diagram. Again I am showing us next diagram to make you more clear. In this you can see 3 points, A, B, C, D. What will we call? It is on the PPC. E point is inside the PPC and F point is outside the PPC. So any point on PPC, that is A to D, or any point inside the PPC, that is point E, are attainable. A, B, C, D, E points को आप क्या बोलेंगे, attainable. You can produce any units from this, but F point is unattainable because it is out of the limit. ये point achieve करना कब possible है, या तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को improve कर लें, या फिर आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लें, जो कि अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है आपको. अगर आप प्लॉट एक और खरीद लेते हैं, इतना बड़ा प्लॉट और खरीद लेते हैं इस एफ तक, तो आप इस पॉइंट को भी अचीव कर पाओगे. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टूडेंट्स एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट. पीपीसी हमें क्या शो करता है, एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल. एक्चुअल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, विच एन इकोनॉमी एक्चुअली अटेन, जो एक्चुअल में इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है, दैट इज नोन एज एक्चुअल आउटपुट. बट व्हाट इज पोटेंशियल आउटपुट, it refers to the maximum output that can be attained. जितना प्रोडक्शन कर सकती थी. फॉर एग्जाम्पल, बार बार वही एग्जाम्पल, शायद आप इससे बोर भी हो रहे होंगे. चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. 10 की जगह मैं 50 मशीन्स ले लेती हूँ. ओके, इफ अ कंपनी इज हैविंग 50 मशीन्स, तो एक मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, 10 यूनिट्स. अगेन इसे भी चेंज कर लेते हैं, चलिए 20 यूनिट्स. ओके, तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, कितनी होगी स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर. अब देखिए, अगर प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स हो सकती है, इट मींस ये क्या है, पोटेंशियल. ओके, व्हाट इज इट, पोटेंशियल. इज इट क्लियर. लेकिन जरूरी है क्या कंपनी 50 की 50 मशीन्स को यूज करे, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और दे आर नॉट हैविंग सो मच लेबर, तो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, हो सकता है वो 40 मशीन्स यूज कर रहे हो. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हियर द पॉइंट कम्स विच इज नोन एज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ ये वाला पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दोबारा से. एक वर्ड होता है फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज. अपने रिसोर्सेज को फुली, कंप्लीटली मतलब, और एफिशिएंटली मतलब बिना किसी वेस्टेज के प्रॉपरली यूज करने को बोलते हैं फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. तो हम यहाँ ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे यूज नहीं करेगी, अगर तो क्या होगा, प्रोडक्शन कैसी होगी, कम होगी. अब 40 मशीन्स यूज करेंगे तो कितनी यूनिट्स बना पाएंगे, वो सिर्फ 800 यूनिट्स. ओके, सो अब देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज तो कम नहीं हुए, 50 मशीन्स पहले थी, 50 ही अब है, पर क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है. दिस इज नोन एज अंडर यूटिलाइजेशन. इट मीन्स रिसोर्सेज है तो सही, बट दे आर नॉट यूजिंग सच रिसोर्सेज फुली. तो अगर आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आपकी एक्चुअल आउटपुट क्या हो जाती है, कम हो जाती है. पोटेंशियल तो है ज्यादा, कैपेसिटी तो है, बट आपकी एक्चुअल आउटपुट क्या है, कम. किस वजह से, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट. अगर आप पीपीसी के अंडर हैं,
और वी कैन से अगर आप पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं या इकोनॉमी, तो इसका मतलब आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट कौन सा होता है, जो इस बाउंड्री के ऊपर आ रहा है। इट मींस जितना आप मैक्सिमम बना सकते हो। लेकिन अगर आप पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, इसका मतलब आप कम बना रहे हो, आप अपने रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज कर रहे हो। तो हियर वी कैन से एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। अगर आप अपनी 40 मशीन्स के बाद फॉर से 41 यूज करना स्टार्ट कर दो, 42, 43, तो आप कहाँ चलते चले जाओगे। यहाँ फॉर एग्जाम्पल यू आर हेयर, if you are using your machines more and more, so you will be able to move closer to the PPC. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, closer to the PPC, मतलब PPC के पॉइंट के और थोड़ा सा पास आते चले जाओगे और लास्ट तक आप कहाँ आ सकते हो, R और S पॉइंट तक आ सकते हो। So students, it depends upon the utilization of resources whether you are able to produce that possible output or not. In the next video, we will continue with the next topics.